الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، 8ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کے اندر بھیجا نبی بنا کر۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام جس قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، اس قوم کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرا ان کے یہاں جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے دھمکی دیا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعدن فيها۔ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، شعیب علیہ السلام کے قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے، گھمنڈی لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اگر تم پھر سے ہمارے دین میں نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں شہر سے، اس گاؤں سے، اس بستی سے نکال دیں گے، تمہیں مدین سے نکال دیا جائے گا۔ اے شعیب، نہیں تو تم ہمارے دین میں پھر سے چلے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے دھمکی دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر بھی ان کی بات کو نہیں مانا اور انہوں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، ہم جس دین پر ہے، ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم شرک کی طرف واپس نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو صرف مختصر طور پہ 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا۔ 3 طریقے کا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ کسی بھی قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس طرح سے عذاب نازل نہیں کیا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم پر۔ زلزلے کی شکل میں عذاب آیا، وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے کے پڑے رہ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا کہ کبھی اس گھر کے اندر وہ رہتے ہی نہیں تھے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے گھروں کو بنا دیا۔ دوسرا عذاب جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل کیا، وہ زوردار آواز آئی اور ان کے کانوں کے پردوں کو اس آواز نے پھاڑ دیا۔ یہ دوسرا عذاب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل کیا۔ اور تیسرا عذاب اللہ رب العالمین نے بدلی کی شکل میں ان کے اوپر نازل کیا۔ جب بادل آئی تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہوا کو روک دیا۔ اب وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ جو بادل اوپر ہے یہ بارش برسانے کے لیے یا ہمارے گرمی کو، دھوپ کو کم کرنے کے لیے آیا ہوگا، تو یہ لوگ بادل کے نیچے جب آئے تو اللہ رب العالمین نے اس بادل کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آگ کی بارش نازل کر دی ان کے اوپر۔ یہ 3 طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد 9ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے شروعات میں حضرت شعیب کے اور ان کے قوم کے لوگوں کا یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم ایمان لے آؤ تو ہم تمہارے اوپر عذاب کیوں نازل کریں گے؟ اگر تم ہمارے فرما بردار بن جاؤ، ہمارے شکر گزار بن جاؤ تو ہم تمہارے اوپر عذاب کیوں نازل کریں گے؟ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس قوم کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی معصیت کا کام ہوتا ہے، اس قوم کے اندر اللہ کا عذاب ضرور نازل ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بار بار کیوں پچھلی قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کے اوپر جو عذاب اللہ نے نازل کیا وہ کیوں اللہ رب العالمین تذکرہ؟ اس لیے تاکہ ہم اور آپ عبرت حاصل کریں، ہم دیکھیں کہ اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کے کارناموں کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیے۔
आप ये समझिए, अगर आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो किसी ना किसी जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर अजाब जरूर नाजिल करेगा। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन नाफरमान बीवी दे देगा, आपके वालिदैन आपसे नाराज हो जाएंगे, आप अपने घर में खुश नहीं रह पाएंगे, आपकी जहनी जो सुकून है वो बर्बाद हो जाएगी। हर तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा है, वादा करके रखा हुआ है, अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे, गुनाह करोगे, मासियत का काम करोगे तो अजाब जरूर आएगा तुम्हारे ऊपर। आखिरत में तो सजा मिलनी ही है, मगर दुनिया के अंदर तुम्हारा सुकून जरूर बर्बाद होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पारे के अंदर सबसे पहले मैंने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह ने इस पारे के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और जादूगरों का किस्सा अल्लाह ने बयान किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे, कहा है फिरौन मैं अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा को जब फिरौन के दरबार में भेजा तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की दावत उसे दी और कहा कि ऐ फिरौन, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो, मेरे साथ कर दो, उनको छोड़ दो, रिहा कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फिरौन के सामने ये बात रखी तो उसने कहा तुम अल्लाह के रसूल हो, कोई निशानी मोजज़ा दिखाओ अगर तुम्हारे पास, कैसे मान ले कि तुम अल्लाह के रसूल हो। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन वनज़ा यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आसा को जमीन पर रखा, अजदहे की शक्ल में तब्दील हो गई। उसके बाद अपनी हथेली को उन्होंने बाजू से निकाला, चमकने लगा। अल्लाह ने यह मोजज़ा दिखलाया। फिरौन ये देखता है तो कहता है अय मूसा तुम जादूगर हो, तुमसे बड़े बड़े जादूगर हमारे पास मौजूद हैं, कहो तो मुकाबला करवा दिया जाए। तुमने जो निशानी अभी दिखलाई है हमें तो यह लगता है कि यह जादू है। वक्त तय कर दिया गया, बता दिया गया कि फला दिन फला टाइम मुकाबला होगा। फिरौन ने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। उस दौर के जो सबसे बड़े बड़े जादूगर थे, सारे जादूगरों को फिरौन ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मैदान में जमा किया गया। लोग तमाशाई बने हुए हैं, देखने के लिए इकट्ठा हैं कि आज मूसा और जादूगरों के सामने एक दूसरे का मुकाबला होने वाला है। जादूगर आए फिरौन के पास और उन्होंने कहा ऐ फिरौन, अगर आज हम जीत गए मूसा से हमारा मुकाबला, आज अगर हम मूसा से फतेह पा जाएं तो हमें इनाम क्या मिलेगा, हमें नजराना क्या मिलेगा। फिरौन ने कहा हम तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम देंगे, बहुत ज्यादा इनाम देंगे, और सबसे बड़ा इनाम ये होगा क़ाल नअम व इन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन, हम तुमको अपना मुक़र्रब बना देंगे, करीबी बना देंगे, मंत्री बना देंगे, दरबारी बना देंगे। जादूगर गए मैदान के अंदर और उन्होंने कहा ऐ मूसा तुम अपने खेल को दिखाओगे या पहले हम दिखाए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है जादूगरों पहले तुम दिखाओ। जादूगरों ने ये कहकर के अपनी रस्सियां जमीन पर फेंक दी कि फिरौन के इज्जत की कसम आज हमारी जीत होगी। जादूगरों ने अपनी रस्सियों को फेंक दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उनकी रस्सियां सांप की शक्ल में तब्दील हो गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख करके डर गए। अल्लाह ने कहा है मूसा डरो नहीं, खौफ नहीं खाओ, अपनी लाठी को, अपनी आसा को जमीन पर रखो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लाठी को, आसा को जब जमीन पर रखा, अजदहे की शक्ल में तब्दील हो गई और जादूगरों की जितनी रस्सियां थी उन रस्सियों को उसने निगल लिया। ये देखने के बाद उस दौर के बड़े बड़े जादूगर जो लातादाद में थे, बेशुमार जादूगर थे, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खेल को दिखाया, अल्लाह के मौजज़े को, अल्लाह की निशानी को उनके सामने पेश किया, तो जादूगर
ये जानते थे कि जो हमने दिखाया है वो जादू है, मगर मूसा ने जो दिखाया है वो जादू नहीं है, वो अल्लाह का मौजज़ा है। फउल्क़िय सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए, कहा हम पूरे जहान के रब पर ईमान लाते हैं। सारे के सारे जादूगर ईमान ले आए। अब जब ईमान ले आए, अब फिरौन धमकी देने लगा। पॉइंट वाली बात यहां है, फिरौन धमकी क्या देने लगा? जादूगरों, लगता है मूसा से तुम साठ गांठ करके आए हो, पहले से तुम दोनों में प्लानिंग थी, ऐसा ऐसा किया जाएगा, मूसा से तुम मिले हुए हो। फिरौन ने इस तरीके की बातें की। कहा है जादूगरों सुन लो, मैं तुम्हें खतरनाक तरीके से सजा दूंगा, तुम्हारे हाथ पांव उल्टे तरीके से काटूंगा, तुम्हारा दाहिना हाथ काटूंगा तो बायां पैर काटूंगा, उल्टे तरीके से तुम्हारे हाथ और पैरों को काटूंगा और तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। फिरौन धमकी देने लगा। अब जब उन्होंने धमकियां सुनी तो जादूगरों ने क्या जवाब दिया जानते हो? कहा कि ऐ फिरौन, जो करना चाहता है कर ले, तो दुनिया के अंदर करेगा, हमारी तो आखिरत संवर गई, हमें तो ईमान की दौलत मिल गई। गौर कर सकते हैं आप, अभी कुछ देर पहले क्या मामला था? फिरौन के पास आए और क्या कह रहे थे? ऐ फिरौन, हमें इनाम क्या मिलेगा, नजराना क्या मिलेगा? लालच में थे, डूबे हुए थे दौलत में, मगर जब ईमान की दौलत मिली तो लालच एक तरफ, खौफ एक तरफ, कुछ भी नहीं। ईमान की दौलत मिलने के बाद कहा ऐ फिरौन, जो करना चाहता है कर ले, जा दुनिया के अंदर तू हमें मार देगा, हमारी जिंदगी ले लेगा, मगर हमारी आखिरत तो संवर गई, हम ईमान वाले हो गए। ये चीज आज हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है। इस ईमान के मिठास को आज अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। ईमान के रास्ते में दो ही चीजें होती हैं, एक खौफ, एक लालच। ऐ लोगों, खौफ और लालच ईमान वाला अपने पैरों तले रखता है, अपने पैरों तले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों, अगर ईमान का मिठास पाना चाहते हो, ईमान का जायका पाना चाहते हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें बतलाई। कहा पहली बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर तुम किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो। सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत हो तो अल्लाह और उसके रसूल से हो। कायनात का कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, माँ हो, बाप हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर अल्लाह की बात आ गई, रसूल की बात आ गई, तो कायनात के सारे लोग एक तरफ, मेरा रसूल एक तरफ, मेरा अल्लाह एक तरफ। ये चीज पैदा कर लो। दूसरी चीज, किसी अल्लाह वाले से दोस्ती करते हो तो अल्लाह के लिए करो। अगर किसी अल्लाह वाले से, किसी मुसलमान से, किसी मोमिन से दोस्ती करते हो तो अल्लाह के लिए करो। दोस्त वो नहीं है जो दुनिया के मामले में हमारा साथ दे, दोस्त वो है जो अपना खुद नमाज पढ़ता है और हमें भी नमाज की तरफ ले। असल दोस्त वही है। दोस्त वो है जो खुद जन्नत की तरफ जा रहा है और हमें भी जन्नत की तरफ, ये दोस्त होता है। तीसरी बात, ईमान लाने के बाद कुफ्र में जाना उतना ही नापसंद करे जितना आग से निकलने के बाद आग में जाना नापसंद करे। ये तीन चीजें जिस आदमी ने बिठा लिया अपनी जिंदगी के अंदर, अल्लाह की कसम वो सच्चा पक्का मोमिन है, अल्लाह की कसम वो सच्चा पक्का ईमान वाला है। और जब ये चीजें मिली ना बिलाल हबशी को, ऐ बिलाल, मक्का के गलियों में घसीटा जा रहा है मगर बिलाल के ईमान पर कोई असर नहीं, भारी पत्थर रख दिया गया मगर ईमान का जायका, ईमान का मिठास मिला था बिलाल को, वो पत्थर बिलाल का कुछ नहीं बिगाड़ सका। सब कुछ, सारी सजाएं एक तरफ, बिलाल को नंगे नंगे बदन लिटा दिया गया है। इतनी बड़ी सजा अगर हमें मिल जाए तो हमारे ईमान का क्या होगा? वो अल्लाह की पनाह हो। मगर अल्लाह की कसम, बिलाल का ईमान कितना मजबूत था कि भारी पत्थर रख दिया गया है, नंगा नंगा जिस्म है, पीछे से पीठ जल रहा है
اور آگے سے بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، بلال ٹس سے مس نہیں کھا رہے ہیں، بلال کا جسم حرکت نہیں کر رہا ہے، مگر بلال کے زبان سے ایک کلمہ نکل رہا ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ ایمان آج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔